بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس لیسن میں میں آپ کو کمپیوٹر کے ہارڈ ویئر، سافٹ ویئر، ان پٹ، آؤٹ پٹ، کمپیوٹر کے فیچرز کے بارے میں بتاؤں گا، اور آخر میں ہم سب سے عام طور پر استعمال ہونے والی جو ہارڈ ویئر ان پٹ ڈیوائسز ہے، کی بورڈ، اس کو تفصیلی تذکرہ کریں گے۔ تو چلیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کمپیوٹر کیا ہے اور ہم اس کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ کوئی جادو نہیں، بلکہ وہ مشین ہے جسے انسان نے اپنے روزمرہ کام کو زیادہ آسانی اور بہتر طریقے سے کرنے کے لیے ایجاد کیا ہے۔ کمپیوٹر کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ زیادہ وقت لینے والا کام انتہائی کم وقت میں کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ کمپیوٹر سے کیا جانے والا کام انسانی کام کے مقابلے میں زیادہ قابل بھروسہ ہوتے ہیں۔ کمپیوٹر کا ایک اور فائدہ یہ بھی ہے کہ معلومات کو محفوظ کرنے، یعنی معلومات کو بعد میں استعمال کرنے کے لیے اپنے اندر ان معلومات کو سٹور کر لیتا ہے، اور ضرورت پڑنے پر ہم اس کو دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ کے سامنے یہ ایک کمپیوٹر ہے۔ یہ ایک ایسی ڈیوائس ہے جسے ہم کچھ معلومات، ہدایات یا ڈیٹا دیتے ہیں۔ کمپیوٹر دی جانے والی معلومات پر کچھ کام کرتا ہے اور پھر ہمیں مطلوبہ نتائج یا ریزلٹس فراہم کرتا ہے۔ یہ کمپیوٹر کا ایک مختصر سا تعارف تھا۔ اب ہم ان ٹرمز کو پڑھیں گے جن کا جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ ہمارے کورس میں بکثرت استعمال ہوں گی۔ ان ٹرمز میں ان پٹ، آؤٹ پٹ، سافٹ ویئر، ہارڈ ویئر اور اسٹوریج ڈیوائسز موجود ہیں وغیرہ شامل ہیں۔ استعمال ہونے والی ٹرم ان پٹ ہے۔ ان پٹ کے معنی کسی سسٹم کو کوئی چیز یا ڈیٹا فراہم کرنا ہے۔ کمپیوٹر ان پٹ سے مراد کوئی ایسی چیز یا ڈیٹا ہے جو ہم کمپیوٹر کو فراہم کرتے ہیں۔ روزمرہ زندگی میں اس کی مثال ایک جوسر کی لی جا سکتی ہے، جس میں ہم مختلف قسم کے پھل ڈالتے ہیں۔ جوسر ان پھلوں کا رس نکال کر گودا علیحدہ کر دیتا ہے۔ غور کریں، یہ پھل جوسر کے لیے ان پٹ ہے۔ وہ چیز جو کمپیوٹر کو ان پٹ دینے کے لیے استعمال ہوتی ہے وہ ان پٹ ڈیوائس کہلاتی ہے۔ جیسے کی بورڈ ایک ان پٹ ڈیوائس ہے کیونکہ یہ کمپیوٹر کو ڈیٹا دینے کے کام آتا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر ہم اپنے جوسر کی ایگزامپل دوبارہ دیکھیں تو کسی جوسر کے اندر آپ کو پھل ڈالنے کے لیے ہاتھ استعمال کرنا پڑتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہاتھ جوسر کے لیے ان پٹ ڈیوائس ہے۔ عام طور پر استعمال ہونے والی کمپیوٹر کی ان پٹ ڈیوائسز میں کی بورڈ، ماؤس اور اسکینر وغیرہ شامل ہیں۔ کمپیوٹر کے استعمال کی بنیادی وجہ کمپیوٹر سے رزلٹ حاصل کرنا ہے، تو اگلی عام استعمال ہونے والی ٹرم آؤٹ پٹ کہلاتی ہے۔ کمپیوٹر ہمیں جو رزلٹ دیتا ہے اسے آؤٹ پٹ کہتے ہیں، یعنی اس کا مطلب ہوا کچھ نکالنا، کچھ مہیا کرنا۔ مثال کے طور پر کسی ٹیوب ویل سے حاصل ہونے والا پانی ٹیوب ویل کی آؤٹ پٹ کہلاتی ہے، اور جوسر سے نکلنے والا جوس جوسر کی آؤٹ پٹ کہلاتی ہے۔ اسی طرح تھریشر سے نکلنے والے گندم کے دانے تھریشر کی آؤٹ پٹ ہیں۔ وہ چیز جو آؤٹ پٹ حاصل کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے اسے آؤٹ پٹ ڈیوائس کہتے ہیں۔ مثلاً جوسر کی مثال میں گلاس یا کپ آؤٹ پٹ ڈیوائس ہے، کیونکہ اس کے ذریعے ہمیں جوسر میں سے آؤٹ پٹ مل رہی ہے، یعنی جوس۔ اگر ہم تھریشر کی مثال کو دوبارہ دیکھیں تو اس جگہ کو تھریشر کی نوزل کہا جاتا ہے۔ یہاں سے گندم کے دانے باہر نکل رہے ہیں۔ اس طرح نوزل تھریشر کی آؤٹ پٹ ڈیوائس ہے۔ اسی طرح کمپیوٹر سے آؤٹ پٹ لینے کے لیے ہمیں آؤٹ پٹ ڈیوائسز کی ضرورت ہوتی ہے۔ عام استعمال ہونے والی کمپیوٹر آؤٹ پٹ ڈیوائسز میں پرنٹر، مانیٹر اور اسپیکر شامل ہیں۔ اب جو ہم نیکسٹ ٹرم دیکھیں گے وہ پروسیسنگ یا کمپیوٹر پروسیسنگ ہے۔ روزمرہ زندگی میں پروسیسنگ کو سمجھنے کے لیے آئیے تھریشر کی مثال کو دوبارہ لیتے ہیں۔ جب تھریشر کو کٹی ہوئی گندم ان پٹ کی جاتی ہے تو یہ اس پر کچھ کام کرتا ہے، یعنی اس کے دانے اور بھس
अलहदा अलहदा करता है। इस काम को थ्रेशर की प्रोसेसिंग कहते हैं। इसी तरह कंप्यूटर इनपुट पर इंटरनली कुछ काम या प्रोसेसिंग करता है, जिससे आउटपुट हासिल होती है। देखिए, ये वही जाना पहचाना थ्रेशर फिर आपके सामने है। इससे निकलने वाली गंदम को बोरियों में महफूज या स्टोर कर सकते हैं। रोजमर्रा जिंदगी की एक और मिसाल लाइब्रेरी की है, जहां हर किस्म के सब्जेक्ट्स के मुतालिक मुख्तलिफ किताबें मौजूद होती हैं, जैसे मैथ्स, पॉलिटिक्स, साइंस वगैरह। गोया लाइब्रेरी के अंदर हर किस्म की किताबें मौजूद होती हैं। आपको मुख्तलिफ जगहों पर जाकर उन्हें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि ये एक ही जगह पर मिल जाती हैं। बिल्कुल इसी तरह कंप्यूटर में मुख्तलिफ किस्म का बेशुमार डेटा और इंफॉर्मेशन स्टोर की जा सकती है, ताकि बवक्ते जरूरत काम आ सके और हमें इसे मुख्तलिफ जगहों पर जाकर ढूंढना न पड़े। स्टोरेज डिवाइसेस। कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए कुछ स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, जिनकी तफसील हम आपको अगले लेसन्स में बताएंगे। इससे मुतालिक चंद नाम आप सहन नशीन कर लें। मसलन इसमें रोम, रैम, हार्ड डिस्क, मेमोरी कार्ड्स, यूएसबी डिस्क, सीडीज और डीवीडीज शामिल हैं। स्टोरेज डिवाइसेस आपकी चीजों को एक जगह महफूज रखने के लिए इस्तेमाल होती हैं। आम जिंदगी में इसकी कई मिसालें मौजूद हैं, जैसे आपके किचन में मुख्तलिफ मसाला जात को स्टोर करने के लिए कैबिनेट इस्तेमाल होती है। अगली टर्म जो हम सीखने जा रहे हैं वो हार्डवेयर है, मतलब वो चीज़ें जिन्हें आप पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं। आपने चाय का चम्मच तो देखा होगा। अगर आप इस चाय के चम्मच को चाय के अंदर चीनी डालने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो यही हार्डवेयर एक इनपुट का काम करता है। अब तक हमने जिन इनपुट, आउटपुट या स्टोरेज डिवाइसेस का जिक्र किया वो कंप्यूटर की हार्डवेयर कहलाती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि कंप्यूटर अपने हार्डवेयर डिवाइसेस या आउटपुट और इनपुट डिवाइसेस को किस तरह इस्तेमाल करता है। इस सवाल के जवाब में हमारे सामने एक नई टर्म आती है, जिसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर वो हदायत होती हैं जिनके ज़रिए कंप्यूटर अपने हार्डवेयर का इस्तेमाल करता है। अगर आप यहाँ गौर करें तो हदायत से मुराद वो चीज़ें जिन्हें आप लिख तो सकते हैं, सोच तो सकते हैं, लेकिन छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते। सॉफ्टवेयर भी इसी तरह ना इससे छुआ जा सकता है, ना इसका वज़न होता है, ना इसे हार्डवेयर की तरह छुआ जा सकता है, लेकिन हार्डवेयर को चलाने के लिए एक अहम किरदार अदा करता है। इसकी मिसाल हम यूं ले सकते हैं कि जब आप अपना कंप्यूटराइज्ड आईडी कार्ड बनवाने जाते हैं तो ऑपरेटर एक इनपुट डिवाइस के जरिए सारा डेटा अपने कंप्यूटर को फराहम करता है। कंप्यूटर इस डेटा को इनपुट के तौर पर लेता है और इसको इंफॉर्मेशन में तब्दील कर देता है। फिर इसको कार्ड पर लिखने के लिए एक खास तरतीब देता है, यानी ये देखता है कि कार्ड पर कौन सी इंफॉर्मेशन पहले आएगी और कौन सी बाद में। इस तरह जब कंप्यूटर हमें कंप्यूटराइज्ड शनाख्ती कार्ड आउटपुट के तौर पर देता है तो इसके लिए भी सॉफ्टवेयर ही इस्तेमाल होता है। अब हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले इनपुट बोर्ड को तफसील से पढ़ेंगे। हम कागज पर कुछ तहरीर करने के लिए कलम इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह कंप्यूटर में कुछ लिखने के लिए हम जो इनपुट डिवाइस इस्तेमाल करते हैं उसे कीबोर्ड कहा जाता है। अब आप मुख्तलिफ किस्म के कीबोर्ड देख रहे हैं। हर किस्म के कीबोर्ड पर तमाम बुनियादी कीज मौजूद होती हैं। हो सकता है कि कुछ कीज की लोकेशन आपके कीबोर्ड पर मुख्तलिफ हो। ये वो कीबोर्ड है जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। इसे कीबोर्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक बोर्ड है जिस पर कीज या बटन लगे हुए हैं। इनमें से कुछ कीज का साइज बाकियों से मुख्तलिफ होता है। कंप्यूटर कीबोर्ड एक आम से टाइपराइटर जैसा होता है, जिसमें कुछ इजाफी कीज शामिल होती हैं। कीबोर्ड पर लगी हुई हर की
एक मुनफरिद किस्म की इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को देती है। प्रोसेस ऑफ की प्रेसिंग। कीबोर्ड कीज को उंगली की मदद से दबाया या प्रेस किया जाता है और फिर छोड़ दिया या रिलीज कर दिया जाता है। इस अमल को की स्ट्रोक कहते हैं। इस बात का ख्याल रखें कि कीबोर्ड की किसी की को दबाते हुए उस की को एक मर्तबा दबाना है और फिर छोड़ देना है। अगर आप किसी की को मुसलसल दबाए रखेंगे तो देखें कि उस की का कैरेक्टर बार बार लिखा जाएगा। कीबोर्ड ओवरव्यू। अब हम आपको कीबोर्ड की मुख्तलिफ कीज के बारे में बताएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कुछ कीज के ऊपर कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं, जैसे ए, एस, डी, एफ वगैरह। इन कीज को अल्फाबेट कीज कहते हैं। कुछ कीज के ऊपर नंबर्स लिखे हुए हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं 1, 2, 3 वगैरह। इन कीज को न्यूमेरिक या नंबर कीज कहते हैं। इसी कीबोर्ड के हिस्से में कैरेक्टर और नंबर कीज के अलावा कुछ और स्पेशल कीज भी मौजूद हैं जो हाइलाइटेड नजर आ रही हैं। इनको हम थोड़ी देर में तफसील से देखेंगे। कीबोर्ड के बाएं जानिब ऊपर की तरफ अब जो हाइलाइटेड की आप देख रहे हैं उसके ऊपर ESC यानी एस्केप लिखा हुआ है। ये एस्केप की कहलाती है। ये कीज जो अब आप हाइलाइटेड देख रहे हैं इनको फंक्शन कीज कहते हैं। इनके ऊपर F1, F2, F3 वगैरह लिखा हुआ है। अब हमें कीबोर्ड की दाईं जानिब 4 कीज नजर आ रही हैं जिन पर तीर के निशान बने हुए हैं। ये एरो कीज कहलाती हैं। ये देखिए, कीबोर्ड के बिल्कुल दाएं जानिब आपको कीज का एक सेट नजर आ रहा है। इसे न्यूमेरिक कीपैड कहते हैं। ये कुछ और कीज हैं जो कंप्यूटर पर मखसूस काम करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, जिनकी तफसील हम कुछ देर में देखेंगे। कीबोर्ड के दाएं जानिब ऊपर की तरफ आप 3 छोटी लाइट्स देख रहे हैं। ये लाइट्स कीबोर्ड की कुछ खास कीज के ऑन या ऑफ होने की निशानदेही करती हैं। इनकी तफसील हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। कीबोर्ड डिटेल्स। आइए अब हम कीबोर्ड की अहम कीज को तफसील से देखते हैं। कैरेक्टर कीज। जैसा कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि कैरेक्टर कीज के जरिए हम मुख्तलिफ कैरेक्टर्स या हरूफ लिखते हैं या इनपुट करते हैं। स्पेस बार की। ये देखिए, अब आपको एक लंबी की नजर आ रही है। इसे स्पेस बार कहते हैं। असल में इस की को हम स्पेस बार इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको एक मर्तबा प्रेस करके छोड़ा जाए तो किसी भी 2 कैरेक्टर्स के दरमियान एक स्पेस या फासला हो जाता है। मिसाल के तौर पर अब आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हम वर्चुअल लिख रहे हैं। अब हमने स्पेस बार की एक मर्तबा दबाई है और इसके बाद यूनिवर्सिटी का लफ्ज लिख रहे हैं। गौर करें कि दोनों अल्फाज के दरमियान स्पेस बार प्रेस करने की वजह से एक कैरेक्टर का फासला मौजूद है। नंबर कीज। देखिए, इस तरह नंबर्स लिखने के लिए हम इन नंबर कीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन्हें नंबर कीज कहते हैं। पंक्चुएशन कीज। चूंकि हम रोजमर्रा जिंदगी में अपनी तहरीरों में पंक्चुएशन मार्क्स का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए कीबोर्ड पर भी ऐसी कीज मौजूद हैं जिन पर पंक्चुएशन मार्क्स हैं। अल्फाबेट कीज के दाएं जानिब आप इन कीज को देख रहे हैं। देखिए, अब हमने कॉमा प्रेस किया है और स्क्रीन पर कॉमा लिखा नजर आ रहा है। अब हमने फुल स्टॉप की प्रेस की है और स्क्रीन पर एक फुल स्टॉप नजर आ रहा है। इन कीज के साथ हमारे पास 2 ब्रैकेट कीज भी मौजूद हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। देखिए, ब्रैकेट की प्रेस करने से स्क्रीन पर एक ब्रैकेट नजर आ रही है। इसी तरह एक की बैक स्लैश के लिए भी है। देखिए, इस की को दबाने से स्क्रीन पर जो हर्फ आपको नजर आ रहा है इसको बैक स्लैश कहते हैं। एंटर की। अब जो हाइलाइटेड की आप देख रहे हैं उसे एंटर या रिटर्न की कहते हैं। इस की के ऊपर एंटर लिखा हुआ है और एक
تیر کا نشان بنا ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے کی بورڈ پر اس کی کے اوپر خالی انٹر لکھا ہو یا صرف تیر کا نشان بنا ہو۔ اصل میں جب ہم کی بورڈ کی مدد سے کمپیوٹر میں کچھ لکھتے ہیں تو ایک لائن ختم ہونے سے پہلے اگلی لائن پر جانے کے لیے ہم انٹر کی کو دباتے ہیں۔ یہ دیکھیے، آپ کی آسانی کے لیے کی بورڈ کے دائیں جانب نومیرک پیڈ پر بھی ایک انٹر کی مہیا کی گئی ہے۔ اس کی کا استعمال بھی بالکل ویسا ہی ہے جیسا ہم نے ابھی پہلی انٹر کی کے بارے میں دیکھا ہے۔ آپ کے سامنے ہم ورچوئل یونیورسٹی لکھ رہے ہیں۔ اب ہم نے انٹر کی دبائی ہے۔ دیکھیے کہ اس کی کو دبانے سے کرسر اگلی لائن پر آ گیا ہے اور اب ہم جو لکھ رہے ہیں وہ اگلی لائن پر نظر آ رہا ہے۔ کمبینیشن جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے دو کیز موجود ہیں۔ ان میں بائیں جانے والی کی نان ٹائپنگ کی ہے اور دائیں جانب ایک عام کیریکٹر کی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ان کیز کے کمبینیشن کو استعمال کرنے کے لیے ہم پہلے نان ٹائپنگ کی دبا رہے ہیں۔ اب دیکھیے کہ اس کو دبائے رکھتے ہوئے ہم ٹائپنگ کی دبا رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم دونوں پریسڈ کی کو چھوڑ رہے ہیں۔ یہ طریقہ استعمال تمام نان ٹائپنگ کیز کے لیے ہے۔ آلٹ کیز اسپیس بار کے دائیں اور بائیں جانب آپ کو دو ایک جیسی کیز نظر آ رہی ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں کیز پر ALT یعنی آلٹ لکھا ہوا ہے۔ آلٹ آلٹرنیٹ کا مخفف ہے۔ ان دونوں کیز کو آلٹ کیز کہتے ہیں۔ یہ بھی نان ٹائپنگ کیز ہیں جو کسی بھی ٹائپنگ کی کے ساتھ استعمال ہو سکتی ہے۔ ان دونوں آلٹ کیز کا کام ایک ہی ہے۔ یہ دوسری آلٹ کی صرف آپ کی سہولت کے لیے ہے۔ یوزنگ آلٹ کیز، فرض کریں کہ ہمیں کوئی کام کرنے کے لیے آلٹ کی کو F کے ساتھ استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، آپ کے سامنے سب سے پہلے ہم نے آلٹ کی کو دبایا ہے۔ اب اسے دبائے رکھتے ہوئے ہم F کی دبا رہے ہیں۔ غور کریں کہ آلٹ کی ابھی بھی دبی ہوئی ہے۔ اب F کی دبانے کے بعد ہم دونوں پریسڈ کیز کو چھوڑ رہے ہیں۔ اس طرح ہم نے آلٹ اور F کیز کو ملا کر استعمال کیا ہے۔ اس بات کا خیال رکھیں کہ آلٹ کی کو F کے ساتھ استعمال کرتے ہوئے اگر ہم آلٹ کی پریس کرتے ہیں اور اس کے بعد F کی پریس کرتے ہیں تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس طرح صرف F ٹائپ ہوگا۔ اسی طرح اگر آپ پہلے F کی پریس کرتے ہیں اور اس کے بعد آلٹ کی دباتے ہیں تو یہ طریقہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اس طرح بھی صرف F ٹائپ ہوگا۔ اس لیے خاص خیال رکھیں کہ پہلے آلٹ کی دبائی جائے اور اسے دبائے رکھتے ہوئے F کی دبائی جائے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ کنٹرول کیز، آپ دیکھ رہے ہیں کہ بالکل بائیں جانب نیچے کونے میں ایک کی ہے جس پر CTRL یعنی کنٹرول لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح یہ دیکھیے، یہ ایک اور کی ہے جس پر بھی CTRL لکھا ہوا ہے۔ ہم ان دونوں کیز کو کنٹرول کیز کہتے ہیں۔ ان دونوں کیز کا کام ایک ہی ہے اور آپ کی سہولت کے لیے یہ دو جگہوں پر مہیا کی گئی ہے۔ کنٹرول کی بھی آلٹ کی طرح نان ٹائپنگ کی ہے جسے ہم دوسری کیز کے ساتھ ملا کر استعمال کرتے ہیں۔ یوزنگ کنٹرول کیز، دیکھیے اگر ہم نے کنٹرول کی کو A کے ساتھ ملا کر استعمال کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کے سامنے سب سے پہلے ہم نے کنٹرول کی کو دبایا ہے۔ اب اسے دبائے رکھتے ہوئے ہم A کی دبا رہے ہیں۔ غور کریں کہ کنٹرول کی ابھی بھی دبی ہوئی ہے۔ اب A کی دبانے کے بعد ہم دونوں پریسڈ کیز کو چھوڑ رہے ہیں۔ اس طرح ہم نے کنٹرول اور A کی کیز کو ملا کر استعمال کیا ہے۔ کیپس لاک کی، اب آپ ایک اور کی دیکھ رہے ہیں جس کے اوپر کیپس لاک لکھا ہوا ہے۔ اسے ہم کیپس لاک کی کہتے ہیں۔ عام طور پر کی بورڈز میں کیپس لاک کی آن یا آف سٹیٹ کو ظاہر کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی لائٹ بھی ہوتی ہے۔ کیپس لاک کی کو ایک مرتبہ پریس کرنے سے یہ لائٹ آن ہو جاتی ہے اور اسی کی کو دوبارہ پریس کرنے سے یہ لائٹ آف ہو جاتی ہے۔ اسی لیے یہ بھی ایک
टॉगल की है। जैसा कि आप देख रही हैं कि जब कैप्स लॉक की ऑन होती है तो हर टाइप होने वाला लेटर एक कैपिटल लेटर या अपर केस लेटर होता है। इसी तरह आप देखें कि अब कैप्स लॉक की ऑफ है और हर टाइप होने वाला लेटर एक स्मॉल लेटर या लोअर केस लेटर है। ये बात याद रखिए कि कैप्स लॉक की का इफेक्ट कीबोर्ड की सिर्फ अल्फाबेट कीज पर होता है। यानी इसका इफेक्ट नंबर कीज, फंक्शन कीज और दीगर कीज पर नहीं होता। शिफ्ट कीज अब जो कि आपको नजर आ रही है, इसके ऊपर शिफ्ट लिखा है और एक तीर का निशान ऊपर की जानिब जाता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए, एक और की है जिसके ऊपर भी शिफ्ट लिखा हुआ है। इन दोनों कीज को शिफ्ट कीज कहते हैं। शिफ्ट की भी ऑल्ट और कंट्रोल की तरह नॉन टाइपिंग की है जो दूसरी कीज के साथ मिलकर इस्तेमाल होती है। यूजिंग शिफ्ट कीज विद कैरेक्टर्स। आइए हम शिफ्ट की को के साथ मिलाकर इस्तेमाल करते हैं। आपके सामने सबसे पहले हमने शिफ्ट की को दबाया है। अब इसे दबाए रखते हुए हम के दबा रहे हैं। अब के की दबाने के बाद हम दोनों प्रेस्ड कीज को छोड़ रहे हैं। देखिए, आपके सामने के कैपिटल लिखा हुआ नजर आ रहा है, जबकि कैप्स लॉक की भी ऑफ है। जी हाँ, शिफ्ट की जब भी कैप्स लॉक की ऑफ स्टेट में किसी कैरेक्टर की के साथ मिलाकर इस्तेमाल होती है तो एक कैपिटल लेटर लिखा जाता है। इसी तरह देखिए कि अब कैप्स लॉक की ऑन है। पहले हम शिफ्ट की दबाए बगैर कुछ कैरेक्टर कीज दबा रहे हैं और ये सब कैपिटल लिखे जा रहे हैं। अब हम कैप्स लॉक की ऑन रखते हुए शिफ्ट के साथ यही कैरेक्टर कीज दबा रही हैं और देखिए अब ये सब स्मॉल लिखे जा रही हैं। मुख्तसरन, शिफ्ट कीज अल्फाबेट्स की स्टेट्स को चेंज करने के काम आती हैं। यानी अगर अल्फाबेट्स अपर केस में हैं तो लोअर केस, और अगर लोअर केस में हैं तो अपर केस में करने के लिए। यूजिंग शिफ्ट कीज विद स्पेशल सिंबल्स। अब जरा इन कीज पर गौर करें। आप देख रहे हैं कि हर की के ऊपर दो दो सिंबल्स लिखे हुए हैं। हो सकता है कि आपके जहन में यह सवाल उठा हो कि जब ऐसी कोई की दबाई जाती है तो कंप्यूटर को कैसे पता चलता है कि हम दोनों में से कौन सा सिंबल लिखना चाह रहे हैं। शिफ्ट की ऐसी सूरत हाल से निमटने के लिए भी इस्तेमाल होती है। देखिए, ऐसे कीज के केस में जिसमें दो दो सिंबल बने हुए हैं, अगर हम नीचे वाला कैरेक्टर लिखना चाह रहे हो तो हम शिफ्ट की के बगैर ये की दबा रहे हैं। सिर्फ इस की को दबाने से नीचे वाला कैरेक्टर लिखा नजर आ रहा है। और अगर हमें ऐसे ही की का ऊपर वाला सिंबल लिखने की जरूरत हो तो देखिए हमने पहले शिफ्ट की को दबाया है। अब इसे दबाए रखते हुए हम ये की दबा रहे हैं। इस तरह आपने देखा कि हमने शिफ्ट की मदद से दो दो सिंबल्स वाली कीज को इस्तेमाल करना सीख लिया है। विंडोज की अगली कीज जो आप देख रहे हैं विंडोज की कहलाती हैं। ये आमतौर पर कीबोर्ड के निचले हिस्से में ऑल्ट की के साथ होती हैं। विंडोज की के ऊपर एक छोटा सा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का लोगो बना हुआ है। इस की के बारे में हम आगे कोर्सेज में तफसील से जानेंगे। टैब की कैप्स लॉक के साथ आप एक अहम की देख रहे हैं जिस पर TAB यानी टैब लिखा हुआ है। इसे टैब की कहते हैं। टैब की एक मर्तबा प्रेस करने से लिखने के दौरान आपका कर्सर कुछ फिक्स्ड नंबर ऑफ स्पेसेस दाएं जानिब चला जाता है। देखिए आपके सामने हम वर्चुअल लिख रहे हैं और अब हमने टैब की प्रेस की है और इसके बाद हम यूनिवर्सिटी लिख रहे हैं। आपने देखा कि जब हमने टैब की प्रेस की तो लिखने के दौरान हम कुछ स्पेसेस दाएं तरफ आगे चले गए हैं। बैक स्पेस की अब जो की आप देख रहे हैं इसे बैक स्पेस की कहते हैं। असल में बैक स्पेस की
एक मर्तबा दबाने से बाएं जानिब का एक कैरेक्टर मिटाया जा सकता है। यानी जिस तरह कागज पर लिखते हुए कोई भी गलती हो सकती है, इसी तरह कंप्यूटर पर लिखते हुए अगर कुछ गलत लिखा जाए तो उसे मिटाने की जरूरत होती है। इसके लिए बैक स्पेस की भी इस्तेमाल होती है। चलिए अब हम वर्चुअल यूनिवर्सिटी का लफ्ज लिखते हैं। ओहो, हमने यूनिवर्सिटी के लफ्ज में 3 वाई गलती से डाल दिए हैं। जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर वर्चुअल यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है। अब हम एक मर्तबा बैक स्पेस की प्रेस कर रहे हैं। देखिए, एक वाई मिट गया है। इसी तरह हम एक और मर्तबा इसे प्रेस कर रहे हैं और बाएं जानिब का एक और वाई मिट गया है। एरो कीज, कीबोर्ड के दाएं जानिब 4 कीज का एक सेट आप देख रहे हैं, जिन पर 4 मुख्तलिफ डायरेक्शंस में एरो या तीर के निशान बने हुए हैं। इनको एरो कीज कहते हैं। इस की पर तीर का निशान दाईं तरफ को है, इसे राइट एरो की कहते हैं। इसी तरह ये की जिस पर तीर का निशान बाईं तरफ को है, इसे लेफ्ट एरो की कहते हैं। देखिए, इस की पर तीर का निशान ऊपर की तरफ है, ये अप एरो की कहलाती है। और इस की पर तीर का निशान नीचे की तरफ है, ये डाउन एरो की कहलाती है। आपके सामने पाकिस्तान के मुतालिक कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। गौर करें, कर्सर दरमियान में है। देखिए, अप एरो की को एक मर्तबा दबाने से कर्सर अपनी पहली जगह से एक लाइन ऊपर चला गया है। इसी तरह डाउन एरो की को एक मर्तबा दबाने से कर्सर एक लाइन नीचे चला गया है। राइट एरो की को दबाने से देखिए, कर्सर एक कैरेक्टर दाईं तरफ चला गया है। और अब लेफ्ट एरो की को दबाने से कर्सर एक कैरेक्टर बाईं तरफ चला गया है। इस तरह हमने देखा कि एरो कीज कंप्यूटर पर काम करते हुए दाएं, बाएं, ऊपर और नीचे जाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। एंटर की और नंबर पैड, जैसा कि आप जानते हैं कि न्यूमेरिक पैड के दाईं जानिब एंटर की भी मौजूद है। इस एंटर की का मकसद ये है कि अगर न्यूमेरिक पैड यूज करते हुए आपको ये की इस्तेमाल करनी हो तो आप इसी पैड पर मौजूद एंटर की यूज कर सकते हैं। सम अदर स्पेशल कीज, एरो कीज के ऊपर आप कुछ स्पेशल कीज देख रहे हैं, जिनमें इंसर्ट, डिलीट, होम, एंड, पेज अप और पेज डाउन की कीज शामिल हैं। डिलीट की, इंसर्ट की के साथ आप देख सकते हैं कि डिलीट की है। जिस तरह बैक स्पेस की प्रेस करने से बाएं जानिब का यानी पिछला कैरेक्टर मिटाया जाता है, इसी तरह देखिए, अगर हमने अगला यानी दाएं जानिब का कैरेक्टर मिटाना हो तो उसके लिए डिलीट की इस्तेमाल की जाती है। होम एंड एंड कीज, होम की किसी भी लाइन के शुरू में जाने के लिए इस्तेमाल होती है। अब जो कि आप हाइलाइटेड देख रहे हैं, इसे एंड की कहते हैं। एंड की किसी भी लाइन के आखिर में या एंड में जाने के लिए इस्तेमाल होती है। पेज अप, पेज डाउन कीज। होम की के साथ आप देख रहे हैं कि पेज अप की है। फर्ज करें कि हमारा एक डॉक्यूमेंट है जिसके 3 सफ़े हैं और इस वक्त हमारा कर्सर दूसरे सफ़े पर है। अगर हम पिछले सफ़े पर जाना चाह रही हूं तो देखें, हम इसके लिए पेज अप की इस्तेमाल कर रही हैं। अब हमारा कर्सर पहले सफ़े पर आ गया है। इसी तरह अगर हम अगले सफ़े पर जाना चाहें तो देखिए, पेज डाउन की मदद से हम पिछले सफ़े पर आ गए हैं। इस तरह पेज अप की ऊपर जाने के लिए और पेज डाउन की एक सफ़ा नीचे जाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। प्रिंट स्क्रीन की, अगली की जो आप देख रहे हैं वो प्रिंट स्क्रीन की है। प्रिंट स्क्रीन की एक खास की है जिसकी मदद से हम कंप्यूटर की स्क्रीन की तस्वीर को वक्ती तौर पर कंप्यूटर में महफूज कर सकते हैं। स्क्रोल लॉक की, अगली की जो आप देख रहे हैं उसे स्क्रॉल लॉक की कहते हैं। पॉज, ब्रेक की, इसके साथ आप एक और की देख रहे हैं जिसे पॉज या ब्रेक की कहते हैं। एप्लीकेशन की, एक अहम की जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं की, वो
एप्लीकेशन की है। ये एक ऐसी की है जिसको दबाने से स्क्रीन पर कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन नजर आती है। नंबर पैड। अब हम कीबोर्ड के दाएं जानिब एक सेट ऑफ कीज देख रहे हैं जिसे नंबर की पैड या न्यूमेरिक पैड कहा जाता है। आप देख सकते हैं कि न्यूमेरिक पैड, नंबर कीज और मैथमेटिकल सिंबल्स का ग्रुप है। इसके अलावा इसके ऊपर एक टॉगल की भी मौजूद है जिसे नम लॉक की कहते हैं। गौर करें कि नंबर कीज के ऊपर कुछ जानी पहचानी कीज के सिंबल भी मौजूद हैं, जिनमें पेज डाउन, इंसर्ट, एंड, डिलीट और पेज अप वगैरह शामिल हैं। नम लॉक। जब नम लॉक की ऑन होती है तो कीबोर्ड पर मौजूद ये लाइट भी ऑन हो जाती है, जो ये जाहिर करती है कि नम लॉक की ऑन स्टेट में है। देखिए कि अब 4, 2 और 8 की कीज दबाने से यही नंबर्स लिखे जा रहे हैं। जब नम लॉक की ऑफ होती है तो देखिए कीबोर्ड पर मौजूद लाइट भी ऑफ हो जाती है, जो हमें ये बताती है कि नम लॉक की ऑफ स्टेट में है। देखिए, क्योंकि अब नम लॉक की ऑफ है, इसलिए 4 दबाने से नंबर टाइप नहीं हो रहा, बल्कि ये लेफ्ट एरो की का काम कर रही है। इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि न्यूमेरिक पैड की कुछ कीज पर मैथमेटिकल सिंबल्स यानी प्लस साइन, माइनस साइन बने हुए हैं। ये कीज मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल होती हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि न्यूमेरिक पैड के दाएं जानिब एंटर की भी मौजूद है। इस एंटर की का मकसद ये है कि अगर न्यूमेरिक पैड यूज करते हुए अगर आपको ये एंटर की इस्तेमाल करने की जरूरत पड़े तो ये की इस्तेमाल की जा सकती है। समरी। कीबोर्ड बेसिक्स के सेक्शन में अब तक जिन कीज के बारे में आपको बताया गया है उनके नाम ये हैं: अल्फाबेट कीज, स्पेस बार, एस्केप की, फंक्शन कीज, नंबर कीज एंड सिंबल्स, ब्रैकेट कीज, बैकस्लैश की, पंक्चुएशन कीज, एंटर की, ऑल्ट कीज, कंट्रोल कीज, कैप्स लॉक की, शिफ्ट की, शिफ्ट प्लस नंबर कीज, विंडोज कीज, टैब की, बैकस्पेस की, एरो कीज, ऑल्टरनेट एंटर कीज, डिलीट की, होम की, एंड की, पेज अप की, पेज डाउन की, प्रिंट स्क्रीन की, स्क्रॉल लॉक की, पॉज ब्रेक की, एप्लीकेशन की, न्यूमेरिक पैड, नम लॉक की एडिशनल नेविगेशनल कीज। और मैथमेटिकल ऑपरेशन कीज। हमने कीबोर्ड के बारे में और कीबोर्ड कीज के बारे में बहुत डिटेल से देख लिया है। होम एक्सरसाइज। आप नीचे दी गई लाइन की मदद से कीबोर्ड पर मौजूद तमाम कैरेक्टर कीज की प्रैक्टिस कर सकते हैं।